Hello students, in this video today we will discuss chapter number 11, reproduction in plants. The learning checklist of this chapter is asexual reproduction, vegetative propagation by natural and artificial methods, sexual reproduction and seed dispersal. So these topics are very important and we will discuss these in detail. So this is the diagram of a plant. We know flower, these are flowers. These flower contains reproductive organs, okay, and these are leaves responsible for the production of food. These are the food factories, and this is stem. The stem gives a support to the plant, and stem contains fibrous structures, okay, xylem and phloem. These are roots. Roots absorb nutrient and water from the ground. So first we will discuss asexual reproduction. In this chapter we are discussing reproduction in plants. So there are three types of reproduction in the plants: asexual reproduction, sexual reproduction and vegetative propagation. So first we will discuss asexual reproduction. So asexual reproduction is further of many types. First type is budding. Budding occurs and it is seen in the yeast. What is budding? These are the yeast. This is yeast cell, okay, and on the wall of this yeast cell, this projection is called bud. This projection is called bud, and first it grows enough, then it separates from the parent cell and then grows in a new cell. So this is the process of budding in yeast, okay. Next is fragmentation. Fragmentation is seen in algae like Oscillatoria and Spirogyra. तो Oscillatoria and Spirogyra में fragmentation वाली process होती है. What is fragmentation? Let's discuss with this diagram. So these both are the diagrams of fragmentation. This is fragmentation in Oscillatoria. इस fragmentation में क्या होता है? When we divide any body into two parts, the both of the parts grows in a new living organism. Okay, so this is known as fragmentation. जब किसी लिविंग बॉडी को कट किया, डिवाइड किया, जैसे कि ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो दोनों के दोनों पार्ट्स जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट ग्रो हो जाएंगे. दिस इज नॉन एज फ्रेगमेंटेशन एंड सेम इज इन फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा में भी सेम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होती है. जब इनको भी डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट्स जो हैं कंप्लीट न्यू लिविंग बॉडी में डेवलप हो जाते हैं. सो दिस इज नॉन एज फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस. The next asexual reproduction is spore formation. What is spore formation? Spore formation में क्या होता है? Spores form हो जाते हैं, like in ferns. So this is the plant of fern. On the tip of leaves, spore are formed. Spores are what? Spores एक spherical shape का होता है. Spherical shape में काफ़ी सारे seeds type structure, spores उसमें produce हो जाते हैं. वो seeds जो structure होता है, जैसे ही spore ब्रेक होगा यहाँ से किसी भी रीज़न से, जैसे ही ब्रेक होगा तो इसमें बहुत सारे सीड्स जो हैं डिस्पर्स हो जाएंगे यहाँ से, और उन्हीं से नए प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पोर्स. एंड स्पोर्स आर ऑल्सो डोरमेंट. जब भी स्पोर्स फॉर्म होंगे तो स्पोर्स जब डिस्पर्स हो जाएंगे तो डिस्पर्स होने के बाद वो जहाँ पे भी रहेंगे वो डोरमेंट रहेंगे. डोरमेंट मीन्स वो कभी डेड नहीं होंगे, हमेशा अलाइव रहेंगे जब तक कि उनको फेवरेबल कंडीशन ना मिल जाए. जैसे ही उनको सारी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है तो वो नए प्लांट में ग्रो हो जाता है. सो दिस इज़ नोन एज द स्पोर फॉर्मेशन. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नाउ व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? इन दिस मेथड द प्लांट ग्रोज फ्रॉम द पार्ट ऑफ दैट सेम प्लांट. ओके, जब भी किसी प्लांट के पार्ट से ही अगर नया प्लांट ग्रो हो जाता है विदाउट एनी सीड, दैट इज़ नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. लाइक इफ़ द न्यू प्लांट इज़ ग्रोइंग फ्रॉम द रूट, स्टेम और लीफ, वन ऑफ एनी पार्ट, सो इट इज़ नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. दीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल. अगर हम नेचुरली बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के ये काम हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ. और अगर
हम उसको करवाते हैं किसी भी मेथड से, आर्टिफिशियल मीन्स से, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय नेचुरल मीन्स. सो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ देम. रनर्स, stolons, offset, suckers, tubers. Okay, so these are vegetative propagation. Let's discuss with first stems. Because vegetative propagation may have from roots, leaves and stem. First we are discussing from stems. Runners. Runners are the slender branches which grows from the nodes. This is node, the junction of stem and root. This is known as node. So these are the branches, slender branches. Slender means transverse branches. These transverse branches grows from the nodes and root itself with some distance away. ये सबसे पहले तो नोड से ग्रो होती है स्लेंडर ब्रांचेस, और कुछ डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे ग्रो हो जाती है, और जिससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रनर्स. एंड एग्जांपल ऑफ रनर्स आर वुड सॉरेल एंड ग्रास. नेक्स्ट, स्टॉलन्स. स्टॉलन्स are the lateral slender branches. These are again lateral slender branches that arise from the base of stem. ये क्या होता है, जो स्टेम का बेस होता है वहाँ से अराइज करती है, एंड ये कुछ डिस्टेंस तक इनिशियली अपवर्ड ग्रो करती है. पहले इस तरह से ग्रो होती है अपवर्ड, देन जब ये ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो लेंथ होने के बाद में फिर ये डाउनवर्ड सॉइल की तरफ ग्रो करती है, और सॉइल में ग्रो करने के बाद अगेन वो अपने आप को रूट कर लेती है यहाँ पे, और नया प्लांट यहाँ से ग्रो हो जाता है. देन जब ये प्लांट डेवलप हो जाता है प्रॉपरली, देन यहाँ से जो इसका कनेक्शन है स्टोलोन्स का वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और प्रॉपरली एक न्यू प्लांट यहाँ पे डेवलप हो जाता है. सेम डिस्कनेक्शन वाला प्रोसेस रनर्स में भी होता है एंड स्टोलोन्स में भी होता है. सो दीज आर द रनर्स एंड स्टोलोन्स. वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम. एंड ऑफसेट्स आर अगेन, in offsets again lateral branches are growing, but now these are growing from the axil of leaf. What is axil of leaf? For example, axil is the connection of leaf from the stem. Suppose this is a plant leaf, okay, and this is stem of any plant. So this connection of the leaf from stem is known as axil. So these lateral branches are grown from these axil parts, okay, and these are developing from the axil and goes till some length, then it root itself in the ground, same as two runners and stolons do. So these are the offsets, and for example these are occurring in water lettuce. Suckers. Suckers are also grown lateral branches, but these are grown from the underground part of the stem, okay. Those are not from underground part of the stem, but this time sucker is grown from the underground part of the stem. First this grow obliquely with some distance, and then it grows with a new plant and form a new plant. So this process is known as sucker, and this method is sucker's method. Next are now we will discuss the vegetative reproduction from underground part of the stem. In some plants, underground part of the stem store food, so that swells to store the food, okay. So in this type of production, these are the types: tubers, bulbs, rhizome and comb. These are the types of underground food storing stem. So first, tubers. If you observe a potato, you can see these projections, these small green projection, these are known as the eye. So these are responsible for the production of new plant from these potato eyes, okay. When you want to grow a new potato plant, you can cut these parts of eye. Each part should contain eye, then you can put into that soil, and
that part will grow in a new plant completely. This type of reproduction is known as tubers. Then next is bulb. This diagram is showing an onion bulb. These are the leaves of onion, scaly leaves these are, and this yellow part is known as terminal bud and this is reduced stem. ओके जब भी बल्ब से रिप्रोडक्शन होना होता है तो इस टर्मिनल बड, इससे जब इसका सीज़न आता है, ग्रोइंग सीज़न होता है, तो इस ग्रोइंग सीज़न में टर्मिनल बड से न्यू शूट्स आना स्टार्ट हो जाती है, नई लीव्स स्टार्ट ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है इसी येलो पार्ट से. सो इसके सीज़न में से न्यू शूट स्टार्ट होती है और वो न्यू शूट जो है सॉइल में जाके अपनी रूट को फिक्स कर लेती है. तो इस तरह से इससे नए प्लांट का ग्रोथ होता है. दिस मेथड इज़ नॉन एज बल्ब. Examples of bulb reproduction is onion, garlic, lily, tulip and amaryllis and iris. These are the plants which are using bulb. And rhizome. Rhizomes are underground stem that have scaly leaves again. Okay, these are the underground stem again and these have scaly leaves. Scaly leaves means the leaves which is flat and touched through the skin. These are known as scaly leaves. So from the scaly leaves nodes new plants and new shoots are growing and then it root itself in the soil and a new plant is growing from these shoots. This is known as rhizome. Okay, these are the nodes. What are nodes? The connection of leaf to the stem. This is known as nodes. And these are scaly leaves and these are bud. New shoots growing from the stem is known as bud and these are internodes. Okay, so this is method of rhizome. The example of rhizome is ginger, asparagus and water lily. Next is comb. Combs are also swollen stems we know and they bear buds on the axil of their scaly leaves. You know what is axil? Axil is the connection of leaf to the stem. So these have buds on the axillary leaves. Okay, and those buds grow from a junction and form a new plant. This method is known as comb. And the example of comb is yam, colocasia, crocus and gladiolus. Think and answer. How will you know that a comb is a stem and not a root? It is clear. We can say the comb is a stem because these are the roots. Roots are growing from the stem. If it would the root part of the plant, it will have some projections, some hair-like projections, but it is not. So that's why we can call it stem. We have discussed vegetative reproduction from the stem. Now it may also have from root in some plants like sweet potatoes and carrot and potato. Okay, in these plants these tuberous roots have some buds on the skin. From these buds new plants grow. So these are the method of tuberous roots, vegetative reproduction from the roots. Next is from leaves. Plants like bryophyllum have a special characteristic. These bryophyllum plants have the capability to grow buds on their blade, leaf blade. Then those blades explode from that plant leaf and goes to the soil and root itself in the soil and form a new plant. So this method is known as the reproduction of new plants from their leaves. It is vegetative reproduction. So these are the methods of natural means. Now next topic is vegetative reproduction from the artificial means. Okay, video we will discuss vegetative propagation by artificial means. So first method is cutting, then grafting and layering and tissue culture. These are the four methods of vegetative propagation by artificial means. So let's discuss first method, cutting. In this method we cut a plant from the stem. हम किसी भी प्लांट का स्टेम से उसको कट कर देंगे, स्टेम वाले पार्ट से कट कर देंगे,
फिर जो अपर पार्ट होगा उसको सॉइल में प्लेस कर देंगे। देन वो पार्ट क्या करेगा, अपनी रूट्स एंड शूट्स को डेवलप करके नया प्लांट ग्रो कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ प्लांट, ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ प्लांट एंड ए हेल्दी प्लांट। इस प्लांट को हम यहाँ से स्टेम वाले पार्ट से कट कर लेंगे और इस अपर पार्ट को सॉइल में जाके प्लेस कर देंगे। जब इसको सॉइल में जाके प्लेस करेंगे तो ये वाला जो उसका स्टेम है, कट स्टेम, ये यहाँ पे अपनी रूट्स डेवलप कर लेगा एंड देन जब प्रॉपरली रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो अपनी शूट्स को डेवलप करके एक नया प्लांट डेवलप कर लेगा। सो दिस मेथड इज़ नॉन एज कटिंग मेथड। द सेकेंड मेथड इज़ नॉन एज ग्राफ्टिंग। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक हेल्दी प्लांट लेते हैं, ओके, इसमें 2 प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट प्लांट को क्या करेंगे हम, उसको कट कर लेंगे स्टेम से, उसको स्टेम से कट कर लेंगे और उसका सिर्फ एक ही पार्ट कट करेंगे, ठीक है, उसकी एक ब्रांच को कट करेंगे। उसकी ब्रांच को कट करके इस तरह से ब्लेड से इंक्लाइंड पोर्शन में कट कर लेंगे, ब्लेड से इंक्लाइंड पोर्शन में कट कर लेंगे, ओके। देन उसके बाद सेकंड प्लांट जिसमें इसको प्लेस करना है हमें, ओके, उसमें क्या करेंगे, एक वी शेप का ग्रूव कट कर लेंगे, इसमें वी शेप का ग्रूव कट कर लेंगे। सो वी शेप ग्रूव इज नॉन एज स्टॉक। जो वी शेप का ग्रूव कट किया उसको हम कहेंगे स्टॉक, और इसको इंक्लाइन पोर्शन में जिसको कट किया था वो पार्ट होता है सियोन। फिर इस सियोन को प्रॉपरली स्टॉक में प्लेस कर देंगे, सेट कर देंगे और टेपिंग कर देंगे इसके ऊपर से, ताकि क्या हो, मॉइस्चर यहाँ से वेस्ट ना हो, ओके। देन हमें इस तरह का कुछ अरेंजमेंट मिल जाएगा। इस अरेंजमेंट को हम रहने देंगे 10 to 20 डेज़। उसके बाद ये प्रॉपरली जब सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, शूट न्यू ब्रांचेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस मेथड को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड इज़ नॉन एज लेयरिंग। लेयरिंग मेथड, लेयरिंग मेथड में हम क्या करते हैं, सपोज ये कोई प्लांट है, इस प्लांट की काफ़ी सारी ब्रांचेस इसमें से ग्रो हो चुकी है, ये ब्रांचेस, कोई भी एक ब्रांच हमने ली जो ब्रांच सॉफ्ट होती है। लेयरिंग मेथड उन्हीं प्लांट्स में काम आता है जिनकी ब्रांचेस सॉफ्ट रहती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल ब्रांचेस। तो कोई भी एक फ्लेक्सिबल ब्रांच को लिया, उसको सॉइल में से पास करवाया, ओके, उसको नीचे की तरफ लेके आए और उसके ऊपर सॉइल लगा दी। फिर उसके ऊपर एक हैवी ब्रिक या ऐसा कुछ भी हैवी वेट प्लेस कर देंगे। देन क्या होगा, जो पार्ट सॉइल के अंदर रहा इस प्लांट का, वो वाला पार्ट यहाँ से अपनी रूट्स को ग्रो कर लेगा और देन रूट प्रॉपरली ग्रो होने के बाद यहाँ से शूटिंग हो जाएगी। दिस मेथड इज़ नॉन एज लेयरिंग मेथड, ओके। द नेक्स्ट मेथड इज टिश्यू कल्चर। व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर मेथड में क्या होता है, किसी भी प्लांट का टिश्यू को लेके उसको ग्रो करवाते हैं, बिल्कुल लैब में ग्रो करवाते हैं, किसी फ्लास्क में ग्रो करवा लेते हैं, ताकि क्या हो, उसको सारी फेवरेबल कंडीशंस मिल सके, जो प्रॉपर आइडियल कंडीशन होती है वो उसको प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। तो इसको कहते हैं हम टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में प्लांट का कौन सा वाला पार्ट लैब में ग्रो करवाते हैं, उसका टिप वाला पार्ट। सपोज कोई भी जो प्लांट है उसके टिप, सबसे ऊपर वाले पार्ट का कोई भी टिश्यू को कट कर लेंगे, उसमें क्या होता है, सारे ग्रोइंग हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए वो वाला पार्ट कट करते हैं, टिप पार्ट। देन उसको हम टेस्ट ट्यूब में या फिर फ्लास्क में, लेबोरेटरी में आइडियल कंडीशंस में ग्रो करवाते हैं, जिससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इस मेथड को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर मेथड। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? इतना सारा हमने डिस्कस किया, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, इन सब को क्यों करते हैं हम, ऐसा क्या एडवांटेज है? तो इनके ये सारे एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेज, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्लांट growers as they can get large quantities of new plants in a short time। अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं तो उससे काफ़ी कम टाइम में नए प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता नए प्लांट को ग्रो होने में, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड द नेक्स्ट एडवांटेज इज, जो नया प्लांट हम ग्रो करेंगे उसमें नए नए प्लांट में जो है अपने पेरेंट प्लांट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी आ जाते हैं, ओके। सारे के सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एग्जैक्टली वो सारे टाइमली आ जाते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एंड जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, थर्ड एडवांटेज इज इट इज़ ईजी टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज़। इससे हम नई वेराइटीज़ ईजिली प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्रॉस वेजिटेशन करके, ओके, क्रॉस ग्राफ्टिंग करके नई जो भी हमें चाहिए उसमें जैसा भी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए उस पेरेंट का हम
वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा के नई कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ला सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज इज वेजिटेटिव प्लांट्स ग्रो फास्टर, ये हमने डिस्कस किया, वो सारे फास्टर ग्रो होते हैं एंड उसमें जो बिग प्लांट है वो जल्दी एडल्ट हो जाता है, ओके, उसकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है, वो मैच्योर हो जाता है, और जल्दी मैच्योर होने की वजह से क्या होता है उसमें सारे के सारे फ्रूटिंग्स हैं वो सारी जल्दी आ जाती है, फ्रूट्स उसमें टाइमली आ जाते हैं, फ्रूट्स आने में भी टाइम नहीं लगता। सपोज़ हम मैंगो ट्री ग्रो करते हैं, मैंगो ट्री को ग्रो करने में हम कहते हैं कि मैंगोज आने में 20 ईयर्स ऑलमोस्ट लगते ही लगते हैं, उसमें 15 to 20 ईयर्स, ओके। अगर हम टिश्यू कल्चर या कोई भी कटिंग ग्राफ्टिंग से करके अगर नया मैंगो ट्री ग्रो करेंगे तो उसमें 5 to 7 ईयर्स में मैंगोज मिल सकते हैं, ओके। यह एडवांटेज होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ओके। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In sexual reproduction, new plant is produced with the male and female parts of flower. Okay, new plant is produced with the female and male gamete. Their fusion is required in this type of reproduction. So first, let's discuss what are the male and female gamete. Okay, these are the parts of a flower. This structure from this part to this part, complete structure, this is known as stamen, and this is male part of the flower, this is known as male gamete, okay. Male gametes are produced here from this part, and this portion, this part, from this part to this part, this complete portion is known as pistil, and pistil is female gamete, female part of the flower, okay. Female gametes are actually inside the ovule, okay. These are female gametes. So this is a flower. Further, stamen is divided into two parts. This top part of stamen is known as anther, okay, and this fiber type structure, fiber like structure is known as filament, okay. This is filament and this is anther. This part is stigma, and this is style, and this is ovary. So stigma, style and ovary, these are known as pistil, okay. There are two types of flower according to male and female gamete. If flower contains both of the gametes, male and female, inside, this is known as bisexual flower, and it is also known as complete flower, okay. And if the flower contains either male or female gamete, only one gamete, then it is known as unisexual flower and also known as incomplete flower. So there are two types of flower, unisexual and bisexual, okay. Now pollination is required. What is pollination? The meeting of male and female gamete is known as pollination, okay. The process of transfer of pollens from the anther to the stigma of the pistil is known as pollination. यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट जब मीट करते हैं, जब उनका फ्यूज़न होता है तो उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये पॉलिनेशन टू टाइप्स के हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलिनेशन सेम प्लांट के फ्लावर्स के बीच में होता है, या तो उसी फ्लावर का उसी फ्लावर के मेल गैमेट से फीमेल गैमेट पे उसका पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, या फिर सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में, यानी कि इस फ्लावर से इस फ्लावर में पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ये भी एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है। एंड नाउ व्हाट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन? डिफरेंट प्लांट्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है, ओके, इस प्लांट का फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, क्लियर? नाउ अब ये पॉलन ग्रेन जो हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे या सेम सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन जो है ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसको करवाने के लिए कोई ना कोई तो एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो वो एजेंट्स हो सकते हैं थ्री टाइप्स के, इंसेक्ट पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होता है, जब इंसेक्ट्स आते हैं फ्लावर्स के ऊपर तो एक फ्लावर पे जाके रेस्ट करते हैं, फिर दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे वो चले जाते हैं, तो इनसे क्या होता है उनके पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर इस तरह से होते हैं तो हम उनको कहते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन। एंड विंड पॉलिनेशन में क्या होता है, विंड के फ्लो के साथ साथ पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, दैट इज़ नॉन एज विंड पॉलिनेशन। एंड वाटर पॉलिनेशन सेम, अगर वाटर के फ्लो से वाटर प्लांट्स में होता है पॉलिनेशन तो उसको हम कहते हैं वाटर पॉलिनेशन। ये मेनली वाटर प्लांट्स में होता है, ओके, एक्वाटिक प्लांट्स में।
सो दोज आर नोन एज वाटर, इंसेक्ट एंड विंड पॉलिनेशन एजेंट्स। अब इन एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्पेशलिटीज़ होती है, कुछ फीचर्स होते हैं प्लांट्स में, फ्लावर्स में। वो क्या होते हैं, जैसे कि कुछ फ्लावर जो होते हैं काफ़ी ब्राइट होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं, ओके, उनमें एकदम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, एकदम कलरफुल होते हैं वो। और कुछ होते हैं डल, ओके, जो कलरफुल होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसके कलर को देख के इंसेक्ट आएगा और उसके पॉलिनेशन करने में हेल्प करेगा। तो ये एक फीचर होता है फ्लावर का। एंड सेम क्या होता है, कुछ फ्लावर जो डल होते हैं, जिनका कलर इतना ब्यूटीफुल नहीं होता, तो वहाँ पे इंसेक्ट्स कम आते हैं, जैसे बटरफ्लाई या फिर दूसरे इंसेक्ट्स जो भी हैं, बीज हो गई, हनी बीज हो गई, वो सारी उनसे अट्रैक्ट नहीं हो पाती, तो उनको विंड पॉलिनेशन या वाटर पॉलिनेशन करना पड़ सकता है। तो ये सारे फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एंड वन मोर थिंग, फ्लावर्स में कुछ स्पेशल फ्रेगनेंसेस भी होती है, ओके। फ्रेगनेंसेस मीन्स उसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो वो क्या करती है, वो भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो दिस इज ऑल्सो द फीचर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। क्लियर? एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, honey bees attracted towards this flower because this flower is good colored. We have discussed the pollination and the process of pollination. Now after pollination, fertilization process starts. pollination में क्या हुआ था, मेल गैमेट पिस्टिल से फीमेल गैमेट स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन था वो ट्रांसफ़र हो गया था, ओके। अब उसके ट्रांसफ़र होने के बाद जो पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा तक आया है, ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, दिस डॉट एंड दिस डॉट, दीज आर पोलन ग्रेन्स, ओके। ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे स्टिक हो गया। यहाँ पे स्टिक होने के बाद क्या होता है, इस पोलन ग्रेन में से एक पोलन ट्यूब ग्रो हो जाती है, ओके। दिस ट्यूब इज़ नॉन एज पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब पूरे स्टिग्मा के स्टाइल से ग्रो होता हुआ, ये दिस पार्ट इज़ नॉन एज स्टाइल, इस स्टाइल से ग्रो होता हुआ यहाँ पे यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ओवरी, दिस इज़ ओव्यूल, ओवरी या ओव्यूल इसको हम कहते हैं। तो यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ से यहाँ तक ग्रो हुई, फिर वो जो मेल गैमेट था, मेल गैमेट इस पोलन ट्यूब से ट्रेवल करता हुआ यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, क्योंकि ये ओवरी था, ओवरी में सारे ओवरी और ओवरी का सेंटर वाला पार्ट ओव्यूल, इस ओव्यूल में काफ़ी सारे एग्स होते हैं, ओके। ये एग्स क्या होते हैं, ओवरी में डेवलप होते हैं, जो कि एक फीमेल गैमेट होता है। इन फीमेल गैमेट से ये जाके फ्यूज़न करते हैं, यानी कि मीट करते हैं, यहाँ पे जाके उनका फ्यूज़न होता है और दोनों मिला के इनका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और इनके फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट क्या होता है, न्यू प्लांट का फर्स्ट सेल। अब जो न्यू प्लांट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, न्यू सीड डेवलप हो रहा है, उसका फर्स्ट सेल वो होता है जाइगोट, ओके। फिर वो जाइगोट फॉर्म होता हुआ, डेवलप होता होता नया प्लांट बन जाता है, नया फ्रूट बनता है, फ्रूट के बाद सीड्स बनते हैं, सीड से फिर नया प्लांट बनता है। ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, ओके। अब फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है ओवरी में। अब वो जाइगोट क्या होगा, उन जाइगोट में से ये जो पेटल्स है, फ्लावर की पेटल्स चली जाएंगी, ओके। और जाइगोट डेवलप होता जाएगा, वो डेवलपिंग उनकी होती रहेगी। फिर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, उसके बाकी के पिस्टिल्स, स्टिग्मा और बाकी एक्स्ट्रा पार्ट सारे चले जाएंगे, इनका कोई अब वर्क नहीं है। फिर लास्ट में बचता है फ्रूट। इस तरह से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। फिर फ्रूट के अपर वाला पार्ट, ये जो लेयर थी, ये थी ओवरी की लेयर, ओके। ये ओवरी डेवलप होती जाएगी और डेवलप होकर एक फ्रूट में फॉर्म हो जाएगी। ओवरी से बन जाएगा फ्रूट और इसमें जो ओव्यूल्स थे, उन ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होके, डेवलपमेंट होके वो सीड्स में फॉर्म हो जाएंगे। तो ओवरी से बन जाता है फ्रूट एंड ओव्यूल से बन जाते हैं सीड्स। तो यह कंप्लीट प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। इज़ इट क्लियर? ओके। अब फ्रूट्स का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, सीड्स भी फॉर्म हो चुके हैं। अब उन सीड्स का यूज़ करके न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो होंगे, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ सीड डिस्पर्जल। क्योंकि प्लांट्स तो यही चाहेंगे कि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती रहे, ओके। प्लांट्स हमेशा न्यू प्लांट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहते हैं हम सीड डिस्पर्जल। अब वो कैसे कैसे करते हैं, सो देर आर डिफरेंट
टाइप्स ऑफ सीड डिस्पर्जल एंड डिफरेंट एजेंट्स। ओके, उन जो फ्रूट्स में सीड्स बने हैं उन सीड्स को स्प्रेड करना ओवर द एरिया, किसी एरिया में स्प्रेड करना, किसी कहीं पे लैंड में स्प्रेड करना, तो वो होता है सीड डिस्पर्जल। ओके, उसके प्लांट के अपनी जगह से दूसरी जगह पे उस सीड को ले जाना, उसको ट्रांसफ़र करना, इसी को हम कहते हैं सीड डिस्पर्जल। अब ये कैसे हो सकता है? वो हो सकता है विंड के थ्रू। अगर वो विंड के थ्रू होता है तो हम उसको कहते हैं डिस्पर्जल बाय विंड, उसका एजेंट हो जाएगा विंड। अगर वो वाटर के थ्रू होता है तो उसका एजेंट हो जाएगा वाटर। अगर वो एनिमल्स के थ्रू होता है तो वो जाएंगे एनिमल्स का एजेंट, एंड एक्सप्लोजन के थ्रू होता है तो हो जाएगा थ्रू द एक्सप्लोजन, एजेंट विल बी एक्सप्लोजन। तो ये सारे इनके टाइप्स होते हैं। अब विंड वाला टाइप हम देखते हैं तो ये होता है डेंडेलियन प्लांट। डेंडेलियन प्लांट इज़ द बेस्ट एग्जांपल। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये प्लांट यू कैन सी हियर दिस प्लांट, इस प्लांट में ये सीड्स डेवलप हो जाते हैं। ये सीड्स इस प्लांट के सीड हैं। अब ये सीड के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है ये काफ़ी लाइट वेट होता है। इस स्ट्रक्चर की वजह से ये सीड ये सीड है इसका, तो ये सीड इसके साथ विंड में फ्लोट करता रहता है और कहीं दूर जाके सॉइल में चला जाएगा और वहाँ पे नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन बाय विंड। और वाटर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोकोनट जब ट्री से नीचे गिरेगा वाटर में तो वाटर के साथ फ्लोट करता हुआ कहीं दूर चला जाएगा और वहाँ पे नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन विद द हेल्प ऑफ वाटर। एंड कोकलबर, इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये फ्रूट है इसका और इस फ्रूट्स में सीड है। अब ये क्या होंगे, जैसे कोई एनिमल आया, जिस फॉर एग्जांपल शीप या गॉट या काऊ, इस तरह का कोई भी एनिमल, तो उनकी स्किन में उनके जो हेयर्स होंगे उनके हेयर्स में अटक जाएगा, वहाँ पे स्टक हो जाएगा। फिर उनके साथ साथ कहीं यहाँ पे उसके साथ स्टिक होने के बाद में कहीं जहाँ तक वो एनिमल्स जाएंगे वहाँ तक ये सीड भी चले जाएंगे। फिर वहाँ कहीं जाके जब गिरेंगे सॉइल में तो सॉइल में एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इसको कहते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल। और एक्सप्लोजन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल पीज़ में क्या होता है, जब पीज़ की ये जो स्ट्रक्चर है फ्रूट है पीज़ का, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब पीज़ पूरे मैच्योर हो जाएंगे तो उसके बाद में इसकी स्किन जो है, इसका शेल, अपर शेल ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद लास्ट में जाके अचानक से एक्सप्लोड होगा। ओके, उसमें एक हम कह सकते हैं कि स्मॉल ब्लास्ट जैसा कह सकते हैं, एक्सप्लोजन होगा वहाँ पे। जैसे एक्सप्लोजन होगा तो इसके जो सीड्स हैं इनसाइड, जो पीज़ हैं वो सारे स्प्रेड हो जाएंगे आसपास वाली जगह पे। तो इसको हम कहते हैं सीड डिस्पर्जल विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजन। तो ये सारे एजेंट्स होते हैं। क्लियर? दिस चैप्टर इज़ completed. If you have any doubt you can ask me on WhatsApp. Thank you.